Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vision and I am your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up back with another important video of Geometry Importance 2022 Maharashtra Board. Before that, I just want to tell you is, I knew that you were going to be surprisingly amazed after getting my Mathematics 1 Importance, because I had referred the entire previous year papers and then had made such important questions coming out of all. Alright, and now over here I have drafted Maths 2 Importance, but here it doesn't mean that you will blindly believe on me and would just do my importance and go for exam. That should not be the case from your end, but also do make sure that you also follow and practice all the other sums that you have been doing since last 1 year. And with also that, I would like to tell you is, right now, if you have not started practicing, please start practicing. I know it's really hard to go on to something and do it for constant level, but you know what, after constant struggles, there's a shining sun that is waiting for you to just shine up on your head with the glory of success. And I want that to happen with you. I want you to make your parents proud. I want you to self-confident yourself, and I want you to believe in yourself and do that hard work and make everything coming out in glory. I really request you to just go across these questions that I've tick marked for you, and also to practice it and make your exam look more better, make your exam paper look more happiest than it could ever have been in the last 5 exams. Alright, now guys, I want you guys to mark on the important chapter. According to me, the important chapter stands here is Pythagoras theorem, geometric construction, trigonometry and coordinate geometry. Now you'll be completely dumbstruck to know that why sir had not marked important as circle and similarity. I want you guys to put your eyes at the end for these 2 chapters, but while giving tick marks, I'll give you from the beginning because I won't go at the last since I'll have mobile problem after that. तो मैं आपको यही एक बात बोलूँगा कि आप ये बात मेक श्योर करिए कि पहले ये 4 चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके खत्म करिए, क्योंकि इसके सम्स आपको इजी आएंगे और बाकी जो 2 चैप्टर को मैंने मार्क नहीं किया है उसके सम्स आपको हार्ड आने के चांसेस है। तो आप टेंशन मत लीजिए, दोनों चैप्टर का मैं आपको इंपॉर्टेंस देता हूँ। सिमिलैरिटी की बात करते तो सिमिलैरिटी चैप्टर यहाँ पे चालू होता है अपना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वाले एक्सरसाइज में से आपके सारे सम्स जो है बहुत इजी है, आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करना। जैसे कि ये पहला वाला सम दिख रहा है आपको, ये वाला सम एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या पता अगर एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए भी आ जाए तो आपकी झोल हो जाएगी ना 1 मार्क की। तो आप 1 मार्क के लिए प्लीज ये सम को एक बारी देख के जाना, ओके। एंड सेकेंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम एंड फिफ्थ सम में से मैं आपको बोल दूं कि फोर्थ और फिफ्थ एक ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं पहले, तो आप प्लीज इसको एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना। तो आपका इससे क्या होगा, सबसे बेसिक थिंग जो होगा आपका कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा इस सम को प्रैक्टिस करने के बाद में। एग्जाम पे अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाएगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख के ले लो, आप आपके हाथ पे छपवा लो, आप आपके पैर पे छपवा लो, या जो भी करना आपको करो। आई एम जस्ट किडिंग, आई डोंट डू ऑल दिस स्टफ्स, ओके। तो हियर यू नीड टू मेक श्योर दैट दिस थियरम स्टैंड्स एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैन मेक होल गैलेक्सी ओवर हियर बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, कल ये थियरम आने के चांसेस है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करके जाना, प्लीज 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 प्लीज। आई टेल यू मोर 10,000 टाइम्स बट द वीडियो विल गो लॉन्गर एंड लॉन्गर, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसका प्लीज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम देख के जाना। और एग्जाम में देखो एंगल बाइसेक्टर थियरम आने के चांसेस बहुत लीस्ट है, तो भी इसको एक बार सिर्फ देख लेना आंख से बस, बट वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम तो प्लीज करके ही जाना, हाँ ओके। उसके बाद उसमें आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर यहाँ पर अपना सॉल्व एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस इजी है, एक बार ही देख लेना। यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि सम नंबर 2 जो है वापस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे अपन सब देखेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, यस क्वेश्चन नंबर है 3 वापस से ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का, तो मैं बोलूंगा आपको कि इसको प्लीज एक बार देख लेना एंड देखकर इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना। और उसी के बाद में आप क्या कर सकते हो,
आप अपना एग्जाम में इसको लिख सकते हो अगर ये सम आया तो. Okay, moving further ahead, we have got questions from this same exercise, that is this one, sum number 8. Sum number 8 again stands important. If you are not practicing this sum, that means you are somewhere going to lose your 2 marks or 3 marks, because this sum has been again repeatedly asked in board exam, and I don't want you guys to take any risk. देखो बाबा रिस्क नहीं लेने का, as you have heard this dialogue from Babu Rao, and I also tell you the same thing. All right. Then we are moving further ahead. अब ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, फटे मजे आ जाएंगे आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये ऐसे ही तरीके से आएगा. ये रूप रंग इसका ऐसे ही रहने वाला है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है. अगर ये इस तरीके से आता था, आप इधर पे आराम से लिख सकते हो यहाँ पर गिवन, यस और नो. गिवन लिख के आप यहाँ पर लिख सकते हो XP अपॉन DP इज इक्वल टू XQ अपॉन QE. यस, ये ऐसा कर दिया आपने, आपको इधर पे लिखने में और इजी हो जाएगा. और आप यहाँ पर फिर आप ये सारे ब्लैंक्स को भर सकते हो. ब्लैंक्स को भरने के बाद में ये ब्लैंक्स भर लिया, ये ब्लैंक्स भर लिया, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको पूरे अच्छे तरीके से लिख सकते हो. यस और नो. फिर इसके बाद में क्या होगा कि आपको एक न्यू एक्सरसाइज आएगा, जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3. 1.3 अगेन एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. 1.3 में मैं आपको बोल दूं कि इतना इसको भाव देने की जरूरत नहीं है ये वाले सम्स को, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि हमेशा ये 2 पोल्स, पोल डांस, पोल ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये पोल वाले क्वेश्चन है ना, हमेशा लूप होल की तरह पूछे जाते हैं. तो इसको प्लीज एक बार ये पोल वाले क्वेश्चंस को देख लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना. आई एम पुटिंग 2 stars बिकॉज आई फील दैट दिस सम इज इम्पोर्टेंट. Okay, now over here, out of this 5, 6, 7, 8 and 9 questions, I would tell you that ये starting 3 questions जो है, इसको तो वटा ही डालो, आप सीधे गोली से उड़ा डालो और इससे सीधे आगे बढ़ जाओ. ये सारे क्वेश्चंस को देखो ही मत. I would tell you that अगर आप ये क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. प्लस पर प्लीज ये इसको है ना, इसको प्लीज भाव देना, ये थियरम को. ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये थियरम को अगर आप भाव नहीं देते हो, मेरे ख्याल से आपके जो 4 मार्क्स है ये खतरे में आ जाएंगे. तो ये प्लीज इस थियरम को भाव देना एंड इसको प्रैक्टिस करना. भाव देना मतलब मेरे हिसाब से होता है प्रैक्टिस करना, बिकॉज इट्स राइट नाउ 12:45 and I'm feeling a bit sleepy. So if I'm not going to entertain myself with such type of talks, I would not be able to make this video that fruitful enough for you to understand it and for me to successfully draft it. Hence I'm going to use such words. If you're feeling any problem in between, that's your problem then. Moving further ahead, we got again questions from the same theorem based question, that is 1.4. मैंने इसका प्रैक्टिस भी बना के डाला हुआ है, आप प्लीज उसको भी एक बारी देख लेना. मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 4th, 5th, 6th सम, ये तीनों सम एकदम इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट. और मेरी बात कान खोल के सुन लेना कि 1, 2, 3 में से कोई एक आएगा ही जाएगा. अब 1 मार्क के लिए आया या 2 मार्क के लिए आया, बट आएगा तो पक्का ही पक्का. बट 4th, 5th, 6th सम ऐसे है ना जो 3-4 मार्क के लिए आपको पूछे जा सकते हैं. बट ये बात तो मैं आपके साथ में गारंटी, शर्त, वारंटी, लॉयर के पेपर के ऊपर एग्रीमेंट पे साइन करके मैं आपको दे सकता हूँ कि 1, 2, 3 में से पक्का कोई ना कोई आने वाला है ही है. तो आप इसको 1 मार्क पाना चाहते हो तो प्लीज कर लेना, बिकॉज अगेन दैट वुड मेक योर वर्क इजियर, राइट. देन मूविंग फर्दर हेड, वी गॉट एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट. मैं बोलूंगा भाई अगर आपको प्रॉब्लम सेट करने में इंटरेस्ट है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डोपामिन, एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स है जो आपको हैप्पी रखते हैं, तो प्लीज प्रॉब्लम सेट करिए. अदरवाइज आई विल नॉट गिव एनी force or any extortion onto you that please do for problem set. Please do just like how your teacher would have done it earlier to you throughout the year. But let me just tell you guys over here, theorem of geometric mean अगर आप इसको करते हो तो बहुत अच्छी बात है. इसको नहीं करना है, इसको समझ के आपको आगे जाके इसके बेसिक सम्स करना है, इसके बेस्ड सम्स. अब मैं आपको बोलूंगा कि सॉल्यूशन के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देख लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, वो भी आने के चांसेस है. अब पर ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाला सम, इसमें से कोई एक पक्का आएगा, पक्का आएगा. सोलर सिस्टम मैंने बना दिया, यहाँ पर मैं बना देता हूँ जुपिटर, यहाँ पे मैंने बना दिया सैटर्न, यहाँ पे सबसे बड़ा जुपिटर. बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है. पाइथागोरस ट्रिपलेट आता ही है, श्योर आएगा, 100% आएगा. आपको पता है ये आने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका रहेगा और हमेशा हर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आते ही रहता है.
ओके, तो इसको आप प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना. मूविंग फर्दर हेड, वी हैव गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज विच आर important. So for you to know that, make sure that you also do subscribe, do like and do comment under this video. Say thank you very much sir for posting this video. I can owe you my kidney. Writing this will always make me happy. I can owe you my kidney. मैं आपको मेरी किडनी दे सकता हूँ. I can owe you my kidney. Now I do not want your kidney, but I want A+ marks and almost 90+%. And if you can give me something, please give me Dubai chocolates. I'm in damn love with it. Then we are going to just make mark out this fifth sum. Fifth sum again is important. Sixth sum is again important. And ये एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा खतरीला जहरीला इंपॉर्टेंट सम जो है वो है सम नंबर 10. सम नंबर 10 एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, बट कोई एकदम इजी तरीके से इसको पूछेगा, इतना लेंदी सम नहीं रहेगा, बट ये लेंदी भी है नहीं इतना ज्यादा, तो ये आने के चांसेस 3 मार्क के लिए भी है. एंड आई रियली विश कि ये आ जाए सम. आपको तो ऐसी मजा आएगी सम को सॉल्व करने के लिए. अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो करो. सबसे ज्यादा इजी बकवास और सबसे सीक्रेट का सम है वो, मतलब इजी से भी इजी है वो, बच्चे लोग भी कर सकते हैं, आपको पता है इतना इजी है वो. देन व्हेन वी विल मूव फर्दर हेड again, you know what, we are going to get some questions from this section. So let me just see what is the section. Yes, over here we have got practice set number 3.1. 3.1 I'll tell you that guys, if you would love to put blind eye on something, this is the perfect exercise where you can put your blind eye on. Then moving further ahead, आप 3.2 पे आते हैं. मैं आपको पट्टे से नहीं आके मारूंगा, मैं आपको गोली से आगे उड़ा दूंगा अगर हाँ. सी आई हैव अ वेरी वैलिड रीजन फॉर यू टू कम एंड शूट. इफ यू आर नॉट डूइंग 1, 2 and 3 सम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से एक सम पक्का 1 मार्क के लिए आता है. रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्लीज उसको एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना. एक ही बार प्रैक्टिस करना. मैं कसम खा के बोल सकता हूं आपको कि आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. और एक बार सुबह में उठ के रेफर कर लेना एग्जाम वाले दिन, आपका काम इजी हो जाएगा. ये सम आप देखोगे जब आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा. अगर आपने इसको नहीं प्रैक्टिस किया तो आप बोलेगे ऐसा सम है, इजी है यार ये तो. that would be your attitude at that time. And then moving further ahead, 4th and 5th सम को बिल्कुल छूना ही मत. अगर छू लिया आपने तो मेरे ख्याल से आपको पैनिक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दैट विल हिट टुगेदर, हैवॉक, वो सब आपको साथ में हो जाएगा. एंड देन we'll move on to the further exercise, that is again 3.3. उसके बीच में आपको जो भी थियोरम्स आने वाले, बकवास थियोरम्स है, बकवास वो सब है जो कभी जिंदगी में पूछे ही नहीं गए. If I would become education minister, surely my first target would be, I would definitely delete this circle chapter. मेरी जिंदगी में किधर पर tangent theorem याद काम नहीं आया है. मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि measure of intercepted arc कितना है. Why circle always with a 360 degree? When I also add many donuts throughout my life, but never ever I asked my donut wala uncle ki why is it 360 degree circle. Never did I, never he told me about it. But that's something very stupid of it what you're talking about, because this is not going to be asked you in the MCQ questions. But yes, if I would like to tell you over here which question is important from practice at number 3.3, I would tell you that it's one that is very important. One is a bachkana question again, but it stands very simple and a repeated question. So always do make sure that you give it a full on hands up for solving this first question. I'm zooming it for you. I'm very much zooming it for you. I'm zoomed it for you to see it very properly. If you are blind, if you are night blindness person, if you have someone suffering from cataract, you can still see that first sum was important. Over here moving further ahead, थर्ड और सेकंड को भी मैं इंपॉर्टेंट दूंगा. आप बोले कि सर पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं दे दी, बट मैं उसको स्पेसिफिकली बताऊंगा भाई क्यों. क्योंकि मुझे बताना है कि इस एक्सरसाइज के तीनों ही सम बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों सम मतलब एक सम तो एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आ गया तो फिर आप मुझे पार्टी दे सकते हो, आपको जहाँ पे भी चाहिए. देन मूविंग फर्दर अहेड, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर नहीं आया एग्जाम में तो मैं पढ़ाने छोड़ दूंगा ये तो बहुत बड़ा वाला वो हो गया, कसम हो गया. बट डेफिनेटली मैं ये चैप्टर को फिर सिखाने छोड़ दूंगा, सर्कल वाले चैप्टर को. ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से अगर आप 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लोगे ना, सर्कल जब से अस्तित्व में आया है, जब से दुनिया घूम रही है और जब से सर्कल चैप्टर इन्वेंट हुआ है, डिस्कवर हुआ है, उसके बाद से जो थियरम है लगातार रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. इससे ये थियरम पूछा गया है, ये थियरम नहीं पूछा जाएगा तो इसका कोई क्वेश्चन आएगा.
क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके बेस पे कोई एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू नहीं आया तो इसके बेस में आपके लिए जो भी आएगा, पर आएगा आएगा जरूर आएगा। आई बेट यू ऑन दिस। एंड देन मूविंग फर्दर एड, ये थियरम को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसको एक बार ये डब्बे के तरीके से भी प्रैक्टिस करना, एक बार डब्बा भर के पूरा एक बार देख के इसको बिना देखे भी लिखने की कोशिश करना, बिकॉज आई टेल यू it's very important. If you are not listening to me and if you are not practicing this theorem and going in the exam, I bet you आपके 2-3 मार्क्स खतरे में जरूर जाएंगे। मैं यहाँ पे शर्त लगा सकता हूँ इस बात की। Moving further ahead from the same exercise, we got very good, very best sum. That is question number 2, which is based on that theorem again. This question stands again important, which is, I guess, can be a question that can be asked to you. So please practice. Again, giving a big heart to this question. Question number 3 again stands important because it is based on the same theorem. Now, ये question number 5th. अगर आपको प्यार नहीं हो जाए ना ये क्वेश्चन से, तो मेरा नाम बदल देना। इसका सोल्यूशन इतना इजी है, इतना इंपॉर्टेंट है, और ये वापस से यही थियरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं जो ये थियरम पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको ही बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन को मैं बोलता हूं मैं आपको वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन जो है फटे इजी है। यहाँ पे बोला है मेजराक एनएस आपका 125 है, मेजराक ईएफ आपका 37 है। ओके, तो एनएमएस कितना रहेगा? एकदम इजी है। इसका हाफ इफ करके आपका आंसर निकाल के सामने वाले को बता देने का एकदम इजी है। 2-3 लाइन का ही आंसर है, एक बार कर लेना, एक बार देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने इतना बड़ा सर्कल इसके लिए बनाया है यहाँ पर कि एक बार ही अगर 7 को देख रहे हो तो 8 को भी देखो, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, देखने में भी करने में सब कुछ करने में मजा आएगी। अब इसके बाद में 3.5 तो कमिटेड एक्सरसाइज है, भगाओ इसको, मारो गोली और आगे बढ़ो। 3.5 को छोड़ के प्रॉब्लम सेट को तो कतई हाथ मत लगाना, आपके हाथ जल के बाहर आ सकते हैं। इसके बाद में जब अपन मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है भगवान का दिया हुआ पुण्य पाप वरदान। पाप उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया, एक्सरसाइज नंबर 4.1, और पुण्य उनके लिए जिनको समझ में आया बारीकी से, एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 4.2। यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप कम से कम सेकेंड सम और फोर्थ सम सीख के प्लीज जाना। और अगर आपके पास सच में वक्त है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो डेडिकेटेड हो, तो प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को देख के जाना। व्हाई एम आई मेकिंग दिस ब्यूटीफुल हार्ट इज 1 और 3 दोनों एक जैसे हैं, 2 और 4 दोनों एक जैसे हैं। 2 और 4 एग्जाम में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, 2 और 4, बट 1 और 3 को जिंदगी में पूछा नहीं गया है। तो मैं आपको बोलूंगा कि 2 और 4 को प्लीज एक बारी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप मुझे दिल से सर मानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो तो आप अपने 4 मार्क के एकदम मस्त वाले रास्ते लगा के ले लेते हो। तो आपको वो नहीं करना है। ओके, एंड आपको मेरी बात मानना है, क्योंकि अगर आप मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ दिखाते हो तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू एज अ सर, एंड आई रियली वांट यू टू एक्सेल विद गुड मार्क्स, आई वांट यू टू शाइन एंड यू वांट yourself to shine up, right? So make sure that you are giving your best. Next over here that we have got the question of practice at number 4.2 and we have got main important questions over here. I would tell you over here is guys, अगर ये exercise 4.2 को मैं बोल दूं कि पूरा important, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? क्या नहीं मानोगे, राइट? बट क्यों आप नहीं मानोगे? मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 3-4 घंटा भी लग रहा है ना ये एक्सरसाइज सीखने के लिए, कर लो। क्यों? क्योंकि इधर पे 3 + 4 + 2 7 मार्क का सम यही एक्सरसाइज में से आने वाला है। ये एक्सरसाइज में से 7 मार्क या 6 मार्क का सम नहीं आया तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आई कैन टेल यू दैट आई विल मेक 2 एक्स्ट्रा वीडियोस ऑन साइंस ऑन पेपर, बट आई हैव ऑलरेडी नॉट मेड इट, बट स्टिल आई गिव यू अ बेट दैट आई कैन मेक 2 more एक्स्ट्रा वीडियोस। अगर मेरे को 7 या 6 मार्क के क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं मिले तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये चैप्टर ये एक्सरसाइज में से ये 3rd क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद में इधर पे अपना सम नंबर जो 7 है 6 है ये भी 2-3 बार पूछा गया है। तो ये बार बार पूछे रहने वाले सवाल की एक्सरसाइज को तो अपन इम्पोर्टेंट बोलेगी। देन अपन आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर पे। गरीबों का सहारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको बता दूं कि यहाँ के सारे जो सम है एकदम ईजी है, एकदम बोलते हैं ना पानी कम चाय नल्ला चीनी whatsoever that you'd use for making this word sound like it's smooth like butter. It's something that you can do with your shut eye. It's something that you can do without any effort. It's effortless and easygoing. So you can use all these words and phrases when you need to say that something is easy. You can also say it's easy peasy lemon squeezy. It's a piece of cake. It's a
It's my alternate hand work. So all these words can make your vocabulary more stronger. If you want to learn English like me, if you want to be a rock star in your English language and vocabulary, do follow me. Thank you. And then moving further ahead, we have got practice at number 5.1. Find the distance between each of the following pair of points. Here मैं बोलूँगा कि भाई एक बारी करके जाना सब कुछ. ये चैप्टर का तो मैं आपको बोलूंगा भाई वरदान है आपके लिए, वरदान. मतलब ऊपर वाले ने आपको इसके लिए दिया है कि आप सच में 2000 में पैदा हो गए और आप कोरोना टाइम में एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए चैप्टर एक मास्क बन के आया है. समझ में आया? तो ये मास्क बन के जब ये चैप्टर आ ही गया है तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है. यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि अगर आपने ये वाला सम गलती से भी डिलीट कर दिया या छोड़ दिया, या आपने ऐसा सोचा कि भाई ये मैं नहीं करूंगा विनय सर, वन मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कसम से मैं आपसे बात करने छोड़ दूंगा. उसके बाद में देन वी हैव गॉट 5 6 7 8. 5 6 7 8 में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सम नंबर 6, सम नंबर 7, सम नंबर 8, ऑल द 4 सम्स 5 को मिला के 5 6 7 8 5 6 7 8. ओ माय गॉड, सरोज खान केम इनटू मी. 5 6 7 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 5 6 7 8 क्वेश्चंस वापस एग्जाम में पूछे गए हैं. अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास महाराष्ट्र बोर्ड ऐप है, तो प्लीज जाके देख लीजिए. पुराने पेपर्स में आपको पैरेललोग्राम का सम मिलेगा, पुराने पेपर में आपको रोम्बस का सम मिलेगा, पुराने पेपर में आपको सम नंबर 8 मिलेगा. 7 नहीं मिलेगा वो अलग बात है, क्योंकि मुझे लगा फ्लो में बता दूं मैं आपको. 5 6 7 8 चारों में इंपॉर्टेंट है, बट 5th 6th और 8 तो हर क्वेश्चन पेपर में पूछा ही गया है. 7वां वाला बहुत इजी है, इसका मैंने वीडियो बना के डाला है, तो इसको वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 7वां वाला सम भी इंपॉर्टेंट है. उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरी मेहनत पानी में बिल्कुल नहीं जाए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सम नंबर 5th को ज्यादा प्यार देना, और सॉरी ज्यादा प्रैक्टिस करना. ओके, ज्यादा प्रैक्टिस देना इसको. एंड उसी के साथ में सम नंबर 6 को ऊपर से देख के उसके लास्ट के जस्टिफाइंग पॉइंट्स को समझ लेना कि उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया. फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम दिस एंड दिस वी गेट, फ्रॉम दैट एंड दैट वी गेट. उसको किस तरीके से करके उन्होंने आंसर को फिनिश अप किया है. क्योंकि आपको यहाँ पर बता दूं मैं भाई, या whatsoever you are right now who's listening to me and my words, I really love you and I want to make you sure that you do not forget to put any therefore, since, reason, equation number. You do not have to forget to make diagram. It's all important. It's all freaking important. I'm forcing myself to get awake by this late night, and I want you to note down this important things that I'm telling you repeatedly. That is, write down the equation number. Write down since wherever it's needed. Write down therefore. Write down the final answer. Box your answer. These are important elements and aspects that has to be there in the geometry paper. Unless and until you're someone who's very, lenient in checking the paper of geometry, but there are many strict examiners who check the paper so strictly, and there exists really such examiners. I'm one amongst them, but I never ever have evaluated or checked or examined, must say, any of the geometry paper. But I tell you guys, I've seen people who have got cancelled the entire sum where there was no reason, where there were no therefore marks, where there were not this and that, and I've leased down the marks. So I want you guys not to make this mistake. You need to work out of my points, and then we both will party, we both will enjoy after your celebrity success. Moving further ahead, we got exercise number 6. This is 5.2, right? 5.2 I will tell you that do not at all skip this second exercise, second sum. Second sum is important, just like how first one is. Then we got sum number 7. ये ना मतलब एक तो sum पक्का आएगा एग्जाम में. ये तीनों में से एक sum अगर नहीं आया, you can kill me with this arrow. Okay. Then moving further ahead, we have got 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12 में से 9th, 10th, 11th, 12th ये चारों भी एक जैसे ही सम है. ओके, बट 9th वाला सम जो है वो 7th वाले सम के जैसा है. 10th, 11th, 12th एक जैसे है. 10th वाला करते हो तो 12th वाला आपको इजी लगेगा. 11th वाला तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से किया गया है, तो सबसे ज्यादा इजी है ये. बट ये तीनों में से एक सम आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन 12वां वाला आया था. 12वां वाला क्वेश्चन आने की वजह से मैं आपको बोलूं कि भाई प्लीज इंपॉर्टेंट है, उसको ब्लाइंड आय मत देना. ब्लाइंड आय देने वाले बच्चे लोग तुम लोग नहीं हो मेरे.
ओके एंड मैं वापस चाहता हूँ कि तुम लोग भागते हुए आओ एग्जाम से, मेरे मैसेज को पढ़ो और मेरे को नीचे हैप्पीली कमेंट करके बोलो सर आपने जो जो इंपॉर्टेंट दिया ना वही आया. ये मत लिखना यू आर गॉड, यू आर एंजल. आई रियली गेट डिप्रेस्ड आउट ऑफ ऑल दिस वर्ड. लाइक व्हाई शुड आई बी अ गॉड मैन? आई एम अ ह्यूमन. आई एम अ very naughty, haughty human. Why should I have to get a terminology of God? Okay, moving further ahead. If you consider me God, that's enough. Then we have got 5.3 exercise that is skipped, deleted, omitted. If you want to burn your hands or if you want to get paralyzed soon enough, problem set करने की कोशिश करना, वरना नहीं करना. ट्रिग्नोमेट्री अब वापस से मैं बोल दूं आपको, ये बोलते हैं ना आप उनको मम्मी प्यार करती है, डैडी प्यार करते हैं तो उन लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है. तो जस्ट लाइक दैट दिस इज द सेम चैप्टर विच यू हैव गॉट अगेन इन योर ज्योमेट्री सब्जेक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि भाई एग्जाम में आपको ये अरे पेंसिल का है, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये आपको 5 सम करके जाने का है. ये 5 सम्स के मैंने वीडियोस बना के डाला है. फर्स्ट ये 5th वाले सम का, 5th वाले सम के जैसा है 1st 2nd 3rd. मैं चाहूँ तो 4th वाला सम बना के वीडियो कॉल बना के डाल सकता हूँ अगर आप चाहे तो. सर ट्रिग्नोमेट्री का 4th सम का वीडियो डालो, ऐसा प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली डाल दूंगा. एंड इसी के साथ में खत्म होते हैं हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंस. इसके प्रूफ दैट करने की गलती से भी कोशिश मत करना क्योंकि मुझे आपकी जान प्यारी है एंड वो आप गवाह मत बैठना वो प्रूफ दैट करके कोशिश करने से. अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज उसको प्रैक्टिस करो. अगर आपको नहीं आता है तो आप नवे हो उस चीज को लेकर तो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान मत दो. और आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो क्या कर रहे हो, आपने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करिए. क्या कर रहे हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए. क्या कर रहे हो, आपने मेरे चैनल के वीडियो को देखा नहीं अब तक का तो पुराने सारे वीडियोस ज्योमेट्री के जाके देखिए क्योंकि मैंने ये सारे इंपॉर्टेंस आपके लिए बना के रखा है. एंड मूविंग अप, साइनिंग अप, आई एम टेलिंग यू अ बिग थैंक्स. Thank you for believing in me. Thank you for making me a teacher who is not only famous in his place but also he is famous in the virtual reality space. Thank you very much, champions. I love you all the very best. Until we meet for the very next time, keep rocking. Be invincible like me.